कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर पूर्णकला सामंत, आज के ऑनलाइन एफडीपी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सबियो फलेरो और आज के प्रमुख वक्ता सुदूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से हमसे जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर संजीव दुबे, विभिन्न महाविद्यालयों से आज के इस ऑनलाइन एफडीपी में इस खंडवा महाविद्यालय के डिजिटल मंच पर जुड़े सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण, हमारे अपने महाविद्यालय के प्राध्यापक, विद्वज्जन, शोधार्थियों, आप सभी का खंडवा के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। जब हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, रिविजिटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो दोस्तों, भारतीय ज्ञान परंपरा में सशक्त और समृद्ध है हमारी गायन कला भी। तो हम आज के इस भारतीय ज्ञान परंपरा के महोत्सव की शुरुआत मृणाली साखड़कर के स्वागत गीत से करते हैं। मृणाली रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास की रचना से आप सबका स्वागत करेंगी। मृणाली, हो क्या तुम? रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित कर दूषणम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजन। हरण भव भय दारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद
दारुणम् श्रीराम 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 बहुत बहुत धन्यवाद मृणाली। और मृणाली के इन सुंदर स्वरों से, रामचरितमानस की इस रचना से आज यह खांडवा महाविद्यालय का डिजिटल मंच सच में बहुत चैतन्यमयी हो गया है। तो इसी चैतन्यमयी वातावरण में मैं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पूर्णकला सामंत से यह अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित, इसी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सावियो और साथ ही साथ इस व्याख्यान माला का जो प्रथम विचार पुष्प संजीव दुबे जी गूंथेंगे, तो वो प्रमुख वक्ता इन सभी का अपने शब्दों से स्वागत करें। प्रोफेसर पूर्णकला सामंत। Good afternoon to one and all. It's my great privilege to welcome you all for this 6-day online FDP on Bharatiya Gyan Mahotsav, revisiting Indian knowledge system. At the outset, I welcome Professor Xavier Falero, Managing Director of Goa State Research Foundation, Directorate of Higher Education, Porvorim, Professor Sanjeev Kumar Dubey, Professor and Head of Dean of Central University, Gandhinagar, Gujarat, my Vice Principal, Dr. Asha Gehlot, IQD Director, Dr. Dilecta Di Costa, all the participants from various colleges of Goa, participants and faculty members from different parts and states of India, my organizing coordinator, Dr. Christina D'Souza, and all the organizing members of this FDP, and all research students who have joined for this 6-day FDP. I welcome you all on this online platform. It's indeed a great pleasure that revisiting Indian knowledge system is very important in this era. In NEP 2020, it holds a great heart, because science that it has evolved, or languages that has been evolved, or social sciences that has been evolved, we need to relook at it for the better prospect of today. Because today we are going with the pace of science and technology, but the roots are there from from the ancient time that has given a very good fundamentals for us to grow in 2020. So our student, NEP student who are joining by in these years, okay, they are forgetting their roots. So it is a right time for all our teachers, to get into role with our ancient times, irrespective of social sciences subject, or art and humanities, or commerce and management, or it may be science, or it is Vedic mathematics, or it could be Sanskrit. This has developed our we have been rooted to by this system, and it holds very good moral ethics for us to know about it, which profounds us values in our education. So I am really very happy that Government College Khandola is hosting a 6-day online FDP on under tagline of Bharatiya Gyan Mahotsav. I am very happy that in spite of the busy schedule, Professor Xavier Falero has joined us through online mode uh, and accepted as a chief guest for our inaugural function. So thank you very much for being with us today, this afternoon. I am utmost, very proud and feeling nice that Professor Sanjeev Kumar Dubey has also joined with us, and his experience and is a great learner, I know it, and that will really help all the participants joining under this FDP can motivate, and we can get more insights about the topic that he has been touching, which should be the first talk for our deliberations, that should give insight to the other days to follow up. So
Professor Sanjeev Kumar, I welcome you all, and we are waiting to hear your very delighted, talk to all the participants from Goa and across India. And I welcome all the members who have joined, my faculty members who have joined, the faculty members and principals from other colleges in India and other states of India. So all the best, and over to Dr. Asha Gehlot for further proceedings of this faculty development program. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक्चुअली जैसे मैडम ने कहा उनकी अपनी इच्छा थी कि बहुत ही जल्दी 6 दिन में मुझे लगता है ये कार्यक्रम तय हो गया है। मैंने जिन जिन को फ़ोन किया, जैसे संजीव जी दुबे हैं या अपने वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, मेरे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, फिर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, अनेकों डिपार्टमेंट्स ने जिन जिन रिसोर्स पर्सन्स को के साथ संवाद साधा, सबने हाँ कहा। तब हमने एक ही जाना कि हेतु अच्छा हो तो सब कुछ यशस्वी, सारा कार्यक्रम यशस्वी होता ही है। तो जैसे मैडम ने अभी कहा कि हमें अपनी परंपराओं के पास, हमें अपनी जड़ों की ओर जाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए चाहे स्मृति हो, पुराण, वेद हो या उपनिषद, जीवशास्त्र हो या रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र हो, इन सब के सब विषयों में हमें अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं की ओर जाने की आवश्यकता है। और संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व भारतीय इस ज्ञान परंपरा का पुनराध्ययन, पुनरावलोकन करने की आवश्यकता महसूस कर रहा है और साथ ही साथ शोध केंद्रों की खोज में भी है। चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे उज्जैनी हो, चाहे काशी या हमारा अपना गोवा परशुराम की भूमि हो, तो हम सबको इन शोध केंद्रों की खोज है। तो इसी बात को सोचते हुए या इसी उद्देश्य को लेकर शासकीय महाविद्यालय खांडोला ने यह 6 दिवसीय रिविजिटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का महोत्सव आयोजित करने का विचार किया है। और आज यह पहला विचार पुष्प गूंथते हुए हमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सावियो फलेरो की उपस्थिति यहाँ पर है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके विचार और उनकी बेस्ट विशेस हम सुनना चाहते हैं। बट बिफोर दैट, may I call upon Dr. Dilecta D'Souza, Dilecta D'Costa, our IQAD director, to give a brief introduction of our today's chief guest, Professor Dr. Savio Falero. Over to you, Dilecta. Thank you, Asha ji. Good afternoon, participants. It is my distinct sorry about that. Good afternoon, dear and immense pleasure to introduce Professor Dr. Savio Falero. It's a real pleasure because he was my PG classmate too. I hope you remember Dr. Savio. Yeah, so to introduce Savio Falero, a visionary whose unwavering dedication and remarkable achievements have left an indelible mark on academia. So friends, prepare to be inspired by his extraordinary journey and unparalleled contributions. Dr. Savio Falero is presently working in the capacity as Managing Director of Goa State Research Foundation, besides being Deputy Director of the Directorate of Higher Education, Government of Goa. He joined as a young faculty member at the Rosary College of Commerce and Arts, Navili, and from then on he went to become the HOD of the Department of Economics, and later on vice principal for nearly 12 years, and then officiating in charge principal, and he was involved in IQAC, NAC, RUSA, NSS, NIRF, and AISHE. Then
After that, he was the former principal of Father Agnel College, Pilar, Goa, wherein he helped that college and it became the first aided college in Goa to secure the prestigious NAC A plus grade with CGPA of 3.28 in August 22. Dr. Savio is recognized as a PhD guide in economics by Goa University. He has published numerous research papers in national and international journals, including those in Scopus journals. His special focus of research is health economics. He has also published 3 books, including one published by Sage, which was ranked at one time as #1 bestseller in its category on Amazon. He has written over 300 articles in local, national magazines and newspapers on various socio-economic and environmental issues. As a resource person, he has delivered numerous lectures at the state and national level, and he has been a member of various academic and non-academic bodies, including those of Goa University, like Academic Council, Planning Board, Sports Advisory Council, BOS, etc. He was also a member of Goa State Education Advisory Committee. In his individual capacity, he has been a recipient of various state-level awards, and he has also helped his former college, that is Father Agnel College, Pilar, secure numerous national and state-level awards. So this is a very eminent chief guest for this FTB. So presenting to you, ladies and gentlemen, our chief guest for the inaugural session of our FTP, Professor Dr. Savio Falero. Thank you so much, Dr. Director. Thank you so much, Dr. Director. And now it's our honor to invite Professor Dr. Savio Falero to share with us his inaugural wishes and thoughts. Thank you, Dr. Asha. Thank you, Dr. Director, for your wonderful introduction. Humbled and privileged to hear some very kind words from you. Respected Principal, Dr. Purnakala Samant, Dr. Asha, the Vice Principal, Dr. Director, IQAC Coordinator, Professor Sanjeev Dubey, other resource persons present. I've seen some principals also attending, the organizing committee members, faculty members from within and outside the state of Goa. A very good afternoon to you, one and all. First and foremost, my sincere thanks to the organizers, to the principal, to the vice principal, to the IQAC coordinator for having me as a chief guest for the inaugural program of this wonderfully conceptualized 6-day FDP, revisiting India's knowledge system. Thank you for having me. And I must start by congratulating the organizers, the Kandola College, for choosing a very, very apt theme for the deliberations during this 6-day convention. I know Kandola College is doing extremely well. Your 3 continuous years, top 150 band NIRF ranking doesn't just come like that. So well done, and I wish you further success in all your activities in the days, months, and years to come. Well, I must say the theme is a wonderful theme that you have chosen. We know that India is outshining every major country in the world today, be it in space, be it in medicine, be it in terms of defense, Make in India concept, and so on and so forth. But we cannot forget our traditions, the rich tradition, the rich history that we have in the context of science, literature, be it in terms of astronomy, be it in terms of mathematics, Ayurveda. And a college like Government College Kandola has rightly thought that this is an area that needs to be revisited. We need to bring the forte of all these past
knowledge system of ours to the new faculty members, to the students, so that we entwine the traditional methods, the rich traditional methods, with the modern methods as well. And this advantage, all of us will agree, practically no other country will have. NEP itself, as Madam Principal mentioned, and I saw your nicely worded brochure as well, the preamble there. NEP itself envisages to bring out into the public domain the contribution of India's knowledge system. We have to start programs, we have to integrate new programs on IKS, and it also blends well with the concept that they have come up with, the interdisciplinary approach to education. I've read in some places, and so also must be many of the participants here today, many places they have started 18 to 20 credit programs on the Indian knowledge system, even giving them the diploma or a minor degree certification. I've seen the array of resource persons that you have selected, and that will be deliberating with the participants from within and outside the state of Goa on a very rich, diverse areas. I wish the very best to the organizers, and I know the deliberations will be extremely fruitful to the participants. May this be the first step to promoting, to revisiting India's, our own country's knowledge system, the traditional knowledge system. The blend that we will get from the tradition and the modern will be much, much rich, and we need to tap into it. So once again, I thank the organizers for having me. I wish you the very best, all success, and I ensure, and I'm sure also that the participants will be much enriched after the 6 days program. Thank you very much. All the very best. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. तहे दिल से आई ये सदिच्छाएं, ये शुभकामनाएं और एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्रोफेसर सवियो, उनके शब्द फूलों से यह 6 दिन की जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। और अब हमें आज के पहले व्याख्यान का, यानी इन 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम या ज्ञान महोत्सव की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो व्याख्यान माला का पहला पुष्प गूंथने का सौभाग्य प्रोफेसर संजीव दुबे जी का है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि निरंतर बहुत ही गतिशील और सक्रिय रहते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, अपने संशोधन कार्य और शिक्षा कार्य को लेकर। और जब मुझे मैडम ने कहा कि हमें रिसोर्स पर्सन इस क्षेत्र से बुलाने हैं, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को कॉल किया और उन्होंने स्वीकार किया। सर, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने स्वीकार किया, तहे दिल से अभिनंदन, तहे दिल से आभार सर। सबसे पहले उन्हें सुनने से पहले छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहती हूँ। प्रोफेसर संजीव दुबे, जिन्होंने MA PhD मुंबई विश्वविद्यालय से की है और साथ ही साथ उनका अध्यापन कार्य 1997 से मुंबई विश्वविद्यालय से संलग्न महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन एवं शोध निर्देशन में गुजर गए। अगस्त 2012 से वे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध निर्देशन कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रिय प्रोफेसर दैनिक अखबारों में भी अपना उपसंपादक के रूप में वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुभव भी उनका बहुत बड़ा है। अप्रैल 2014 से वे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं, प्रवेश समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों पर वे सातत्य से काम कर रहे हैं। उनका संपादन कार्य भी काफी बड़ा है। शोध पत्रिका सृजन संदर्भ का आरंभिक 12 अंकों का संपादन
उन्होंने किया है। और साथ ही साथ हिंदी कहानी और सांप्रदायिकता, यह उनका समीक्षा शोध ग्रंथ प्रकाशित है। इसके साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में 50 से ऊपर उनके शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ ही साथ यह कहना भी मुझे अच्छा लग रहा है कि 100 से ऊपर संगोष्ठियों में उन्होंने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं, अध्यक्षता की है और लगातार कर रहे हैं। और आज मुझे याद आ रहा है कि हिंदी प्राध्यापक परिषद जो संपूर्ण भारत के प्राध्यापकों को एक सूत्र में जोड़ रही है, इस प्राध्यापक परिषद के पायोनियर्स में वे हैं। और आजकल बहुत अच्छा यह काम हो रहा है भारतीय प्राध्यापक परिषद का, जिसमें नई शिक्षा प्रणाली को लेकर निरंतर बातें हो रही हैं और एकदम सशक्त बातें हो रही हैं। मैं अनुरोध करती हूँ सर से कि वे आज हमें अपना वक्तव्य यहाँ पर नई शिक्षा प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसकी अनिवार्यता क्या है यह बताएं, और हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं सर। प्रोफेसर संजीव दुबे, नमस्कार। नमस्कार, आपण सर्वांना नमस्कार। मैं चूंकि एक लंबा समय मेरा महाराष्ट्र में बीता है और मराठी कोंकणी बिल्कुल सगी बहनें हैं, तो मैंने सोचा कि अपना अभिवादन मैं आपसे मराठी में करूं। मैं अपनी बातें हिंदी में कहूंगा क्योंकि हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूं। और यदि किसी प्रतिभागी को किसी बात को समझने में दिक्कत होगी तो मैं या मेरे अन्य साथी जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं वो उनकी मदद करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गोवा के खांडोला महाविद्यालय जो शासकीय महाविद्यालय है उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद ये किसी महाविद्यालय में इस तरह का ये पहला आयोजन होने जा रहा है जो भारतीय ज्ञान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए मैं महाविद्यालय की प्राचार्या, कुछ लोगों का नाम चंद्रकला होता है, कुछ लोगों का नाम शशिकला होता है, लेकिन मैडम पूर्ण कला है। यानी चंद्रकला, चंद्र की कलाएं कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन मैडम हमेशा हर तिथि और हर पक्ष में पूर्ण कला की आभा से मंडित होती हैं। ऐसी प्राचार्या की ही ये सोच हो सकती है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महोत्सव मनाएं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपप्राचार्या आशा गहलोत मैडम हैं। तो आप दोनों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैं सभी प्रतिभागियों का भी अभिवादन करता हूं और कोशिश करूंगा कि हम लोग विषय के इर्द गिर्द रहते हुए विचार करें कि कैसे यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्थापित करने की एक कोशिश है। भारतीय ज्ञान परंपरा के जो श्रेष्ठ दाय हैं उस दाय का संरक्षण, उस दाय का जन जन में उसका प्रचार प्रसार और उस दाय से कैसे हम नए का निर्माण कर सकते हैं, उस भूमिका की निर्मिति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम कई बार नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, और अनेक लोगों ने नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फर्क को भी बताने की कोशिश की है कि यह सही मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए है क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता, हजारों वर्षों के ग्रहण एवं त्याग से पोषित जो परंपराएं हैं, समृद्ध राजनीतिक विरासत, सामाजिक संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, साझी स्मृति, जो आख्यान परंपराएं, महाकाव्य, साहित्य शास्त्र और भारतीय भाषाओं के साझेपन को एक साथ एक सूत्र में
पिरोते हुए एक राष्ट्रीय संकल्पना के साथ प्रस्तुत की गई है। इसलिए यह मात्र एक भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को रेखांकित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की गई है जो भारतीय मूल्यों से विकसित है, जो छात्रों में विचार, व्यवहार, बुद्धि, आचरण, ज्ञान, कौशल के स्तर पर भारतीय होने का गर्व भरे, संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग बनाए, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील, विश्व नागरिक के निर्माण और भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने में सहायक हो। यह ध्यान रखने की बात है कि भारत केवल आर्थिक कारणों से महाशक्ति नहीं बन सकता है, वह अपने ज्ञान की शक्ति से महाशक्ति बनेगा। तो महाशक्ति वह कैसे ज्ञान की अपनी शक्ति से बनेगा, इसके लिए कैसे बुनियाद के तौर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उसके भीतर सम्मान जगाना है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण सोच, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियाद, विरासत के प्रति हम भारतीय विद्यार्थियों में सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। कई बिंदु इसके हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत से मतांतर भी हैं, और कोई भी जो विजन डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न करने की गुंजाइश भी होती है, और भारतीय परंपरा प्रश्न करने की गुंजाइश को स्वीकार करती है, और हमेशा प्रश्न करने के बहाने से, प्रश्न करने के माध्यम से ही नए रास्ते भी खुलते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको मैं कह रहा हूं कि यह भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः स्थापित करने के लिए लाई गई है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह क्या थी, वो बातें कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना में लाई गई हैं, जो उसके प्रमुख आधार बिंदु हैं। तो एक बात जो भारतीय ज्ञान प्रणाली में रही है वह रही है एक तो समावेशिकता, और दूसरी बात उसमें जो रही है वह यह है कि अपनी भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, भारत ने जो भी दुनिया को महान उपलब्धियां प्राचीन काल में दी, वह सब उपलब्धियों को देने वाले जो हमारे महान ऋषि हुए, जो हमारे महान विद्वान हुए, जो महान अध्येता हुए, आप देखें कि वो सब अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित कर रहे थे, और उन्होंने अपनी भाषा में उस ज्ञान को प्रस्तुत भी किया, और वह ज्ञान पूरी दुनिया के लिए रोशनी बना। तो चूंकि वह ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली में विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, प्रतिष्ठा और विकास निहित था। हमारी गुरु परंपरा में विद्यार्थी को यह देखा जाता था कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, और तदनुरूप उस क्षमता के विकास करने के लिए गुरु प्रयत्नशील होते थे। और इस तरह से जिसकी जैसी रुचि, गति, प्रवृत्ति होती थी, क्षमता होती थी, वैसे ही उसमें ज्ञान की पौध रोपने का प्रयत्न किया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विशेषता है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान की जाएगी, और उसकी प्रतिष्ठा और विकास के लिए प्रयत्न सुनिश्चित किए जाएंगे। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बहुत लचीलापन है, बहुत ही क्या कहेंगे, सुदृढ़ विभाजन करने की कोशिश नहीं की गई है। जीवन एक लंबा समय है, सफर है, और उसमें एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है जब मनुष्य की रुचि का विस्फोट होता है। अचानक उसका ज्ञान किसी एक दिशा में बहुत तेजी से गति करता हुआ आगे बढ़ने को लालायित हो उठता है, उत्सुक हो उठता है, लेकिन वहां पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली की जो बाध्यताएं रही हैं वो उसकी राह रोक देती हैं, उसके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। हमने सबने देखा है कि अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में गए होते हैं, 2-4 साल
वहां पर पढ़ करके उसको छोड़ के, और कई बार तो डिग्री पूरा करके आते हैं और फिर वो दूसरे विषय पढ़ते हैं। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि विद्यार्थियों को जब हम किसी एक निर्धारित एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जैसे उसे बांध देते हैं, तो उसे एक समय के बाद एक सफोकेशन फील होता है, उसमें उसका मन घुटता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं तो इसके लिए नहीं हूं, मुझे मेरी रुचि इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और बहुत बार ये कोई जरूरी नहीं है कि जीवन के 15-16 वर्षों में, 13-14 वर्षों में ही हमारी रुचि और गति का निर्धारण हम कर लें और उसके बाद जिस विषय को हमें चुनने के लिए कह दिया जाए या जिस विषय को हम चुन ले, उसी में एक सीमा से आगे हम दूसरे विषय की ओर बढ़ न सके। तो ये लचीलापन जो है वो हमेशा एक तरह की लेटरल एंट्री एग्जिट का पूरा मौका देता है कि आप कहीं पर भी मेजर और माइनर का मौका देता है कि आप फिजिक्स से अगर मेजर कर रहे हैं तो हिस्ट्री से माइनर कर सकते हैं, और हिंदी से मेजर कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स से माइनर कर सकते हैं। और इस तरह से विद्यार्थी की रुचि और गति को बहुत महत्व दिया गया है, और हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली भी ऐसा ही करती आई थी, जिसके कारण हम ज्ञान की एक बहुत चूड़ांत उपलब्धियां अर्जित कर सके। बहुविषयकता, जैसा मैंने कहा, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की कोशिश की गई है। उसे केवल रटने और परीक्षा पास कर लेने लायक बनाने का जो प्रयत्न रहा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे दर्शाई गई है। नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजगता को सुनिश्चित करने का प्रयास भी हमें दृष्टिगोचर होता है। बहुभाषिकता, हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुलतावादी राष्ट्र है, उसकी संस्कृति भी बहुलतावादी है और उसमें भाषाओं का एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता है, अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी समृद्ध परंपरा है, और उन भाषाओं में ज्ञान की थाती सुरक्षित है, संरक्षित है। वह शास्त्रीय ज्ञान भी है और लौकिक ज्ञान भी है, वह आधुनिक ज्ञान भी है, वह देशज ज्ञान भी है, और साथ ही साथ इन भाषाओं में लंबे समय से जो विश्व के साथ भारत का संबंध रहा है, भारतीय ज्ञान का संबंध रहा है, वह ज्ञान भी हमने अपनी अपनी भाषाओं में सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है। इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ जीवन कौशल निर्माण की चेतना, हम कैसे कौशल का विकास करें, स्किल का डेवलपमेंट हो, यह बहुत जरूरी बात हमारे नीति निर्धारकों ने तय की है। भारत की जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं हैं, जो समृद्ध विरासत है, उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन लेने का यह प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई पड़ता है। उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन तथा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। मैं एक कोट कर रहा हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज से। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, तिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज आदि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। ये कुछ उदाहरण है जो राष्ट्रीय
शिक्षा नीति में दिए गए हैं। और इसके माध्यम से, इस प्रस्तावना के माध्यम से मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, उसको व्यवस्था में सुनिश्चित करने, उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने का यह प्रयत्न है। यह इस प्रयत्न की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अतीत में थोड़ा जाना चाहिए कि आखिर हमारी जो यह श्रेष्ठतम उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों से हम कैसे विमुख होते गए और उस विमुखता के पीछे किसकी भूमिका रही, और आज कैसे उससे उबरने के हमको प्रयत्न करने हैं, और हमारे पूर्वजों ने कैसे प्रयत्न के रास्ते दिखाए हैं। उन दोनों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति के जो श्रेष्ठ जो उसकी उपलब्धियां थी, उनको सिलसिलेवार तरीके से और एक बहुत ही नीति के साथ खारिज करने के प्रयत्न किए गए। भारतीय चिंतन परंपरा नामक पुस्तक में के दामोदरन ने इसका एक बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। पश्चिमी विचारों का प्रभाव नामक अपने निबंध में उन्होंने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किस तरह के षड्यंत्रकारी बीज रोपे गए, उसके पीछे उनकी नीति नीयत और मंशा कितनी खराब थी, बावजूद इसके उनके जो सुफल हुए वो ठीक उसके विपरीत हुए। उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से 2-3 उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि आज के व्याख्यान में उसका स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि ये व्याख्यानों की श्रृंखला है और चूंकि पहला व्याख्यान मुझे देने का अवसर मिला है, इसलिए इस पृष्ठभूमि को हमारे जो साथी हैं वो ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाए गए प्रत्येक कदम, ब्रिटिशों के प्रत्येक कदम में उनके विनाश के बीज छिपे हुए थे। यानी जिससे वो अपने शासन को सुदृढ़ करना चाहते थे, वे ही उनके विनाश के बहुत बड़े कारण बने। आप देखें कि आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई मिशनरियों के साथ कोई बहुत संबंध नहीं रखती थी, लेकिन आगे चलकर उसने एक संबंध स्थापित किया। और उस समय जो भारतीय चिंतन परंपरा में दामोदरन जी कोट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष मैंगल्स ने 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कहा, कोट है कि भाग्य ने इंग्लैंड को हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य सौंपा है ताकि ईसा का झंडा विजयोल्लास से भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फहराता रहे। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए कि समूचे भारत में को ईसाई बनाने के काम में उस देश में किसी तरह का विलंब न होने पाए। देखिए, ये समय समय की परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों को उसके काल स्थान के सापेक्ष ही देखना चाहिए और उसके पीछे सत्ता की नीयत और मंशा को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए। अकादमिक चर्चा में हमको इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए। अब हुआ ये कि ये सारी चीजों से जो एक प्रोत्साहन हुआ, उसके चलते जो मिशनरियों की भूमिका रही, उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही जाति प्रथा, अस्पृश्यता, अछूतपन, इन सब मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध जो उन लोगों ने जागरण अपनाया, उससे भारतीयों के भीतर भी अपने आप को देखने की एक समझ, देखने का एक नजरिया निर्मित हुआ और उन लोगों में अपनी एक सामाजिक चेतना जागृत हुई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम
मैकॉले की बात करते हैं। मैकॉले की जो पूरी योजना थी शिक्षा के कार्यवृत्त में जो वह प्रकट करता है, उसमें उसके भीतर एक शासक की जो घृणा है, ध्यान रखिए, शासक की जो एक घृणा है वह उजागर होती है। वो दावा करता है कि यहाँ के देशी लोग जो बोलियां आमतौर से बोलते हैं वे बहुत ही गई बीती और कर्कश हैं। वो हमारी भाषा पे प्रहार कर रहा है। वो कहता है कि अरबी और संस्कृत काव्य साहित्य महान यूरोपीय राष्ट्रों के साहित्य के सामने कभी टिक नहीं सकता, और यह कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के मुकाबले बहुत है। ध्यान रखना, भारत और अरब के, हमारी जो अंग्रेजों के पहले की जो संस्कृति, जो हमारी समझ, जो हमारा ज्ञान था, उसमें भी एक साझापन, एक साझी संस्कृति थी। उसके भी अवशेष, उसकी भी उपलब्धियां और उनके संपर्क से एक जो हमने नई चेतना प्राप्त की थी, उसके पूरे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध थे। तो कहता है कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के मुकाबले बहुत है। स्वयं अपनी भाषा की आंतरिक श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि संस्कृत भारत में लिखी तमाम पुस्तकों में जो ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए इंग्लैंड के नितांत प्राथमिक स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों के अत्यंत साधारण संक्षेप में मिलने वाली सामग्री से भी कम मूल्यवान है। यह हमारी पूरी ज्ञान परंपरा की तौहीनी करने का यह एक प्रयास है, एक सुनियोजित प्रयास है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा, जब मैं भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहा हूं तो उसमें काल विशेष में जो अन्य सांस्कृतिक धाराएं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ती गई हैं, उन दोनों पर एक साथ प्रहार करने का यह प्रयत्न कॉलोनियल दौर में, औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें बहुत बार लोग कहते हैं, कही भी गई हैं कि इन मदरसों, इन विद्यालयों से अंग्रेजी शिक्षा जो पढ़कर निकलेगा वह स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा प्रणाली, अपने धर्म, अपने दर्शन, अपनी रीति रिवाजों से वह स्वाभाविक रूप से घृणा करने लगेगा। ये आप योजना देखिए, क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा का ह्रास हुआ एक दौर में। तो ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है जो औपनिवेशिक दौर है। यह ध्यान देने की बात है कि कैसे एक सोच को बढ़ावा दिया गया जो भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर देगी और उन्हें वफादार गुलाम बनाने में सफल होगी। किंतु उसने दरअसल जीवन की अवधि कैसे रिवर्स हुआ, जीवन के प्रति एक नए वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु का आधार तैयार किया और नए राष्ट्रीय जागरण में सहायता पहुंचाई। और आजादी का पूरा जो संघर्ष है, इस संघर्ष में शामिल हमारे तमाम जो प्रमुख महापुरुष हुए, उन सब ने इसी दौर में एक चेतना अपने भीतर निर्मित होती हुई महसूस की, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण का भी नेतृत्व किया। स्वाधीनता आंदोलन भी राष्ट्रीय नवजागरण की कोख से ही पैदा हुआ था और वहां से लेके 15 अगस्त 1947 के सत्ता हस्तांतरण तक की जो उनकी भूमिका रही, वह इन्हीं सोच और इसी नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके भीतर निर्मित हुई और देश को आजादी मिली। उसके बाद से लेके आज तक हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां या नई शिक्षा नीति रही, निरंतर उसने एक बदलाव करने की कोशिश की। उसमें एक अलग अलग समय पर, अलग अलग दौर में जो प्रयत्न किए गए, उसकी प्रशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में मिलती है कि किस तरह से समय समय पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां लागू की गई, उससे उसके क्या स्वाभाविक और अच्छे सार्थक
परिणाम हुए। साथ ही यह भी देखा गया कि उसके क्रियान्वयन को लेकर के जो कमजोरियां रही, उन कमियों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारकों ने दूर करने का प्रयत्न 2020 के दस्तावेज में किया है। और उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारा ज्यादा जोर दस्तावेज और नीति के से ज्यादा उसके क्रियान्वयन पर होगा, उसको लागू करने पर होगा। अब आप देखिए कि एक तरफ मैकॉले और अंग्रेजी शिक्षा जो चल रही थी, उसकी क्या दशा, हमारे समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। दूसरी तरफ कैसे हमारे कवियों ने, लेखकों ने इस चीज को महसूस किया। तो सैयद अकबर हुसैन, जो अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने गए, 1846 में जिनका जन्म हुआ था, जो शिक्षा से भी लंबे समय तक जुड़े रहे, उनके कुछ शेर बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक का मैं जिक्र करना उचित समझता हूं कि वो लिखते हैं कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। अब आप देखिए कि उस समय की शिक्षा की परछाई कवि दर्ज कर रहा है कि हम ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान आदर के भाव के स्थान पर हम उनका अपमान और अनादर, या फिर उनको हम खपती या थोड़ा सा उनमें उनके भीतर पागलपन जैसा हम महसूस करने लगे। तो यह कौन सी शिक्षा होगी जो अगर हमारे पूर्वजों के प्रति असम्मान पैदा करेगी। एक दूसरा शेर उनका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो लिखते हैं कि तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। जोर तो बहुत है, शोर बहुत है, तहजीब का हल्ला गुल्ला बहुत है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है, यानी विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब नीयत में खराबी है। ये किसकी नीयत में खराबी है? ये औपनिवेशिक शासकों की नीयत में खराबी थी, जिनकी नीयत की खराबी की सजा हम सदियों से भुगतते चले आए और अब जाकर के हम उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश का एक प्रमाण जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति देती है। जैसा मैंने कहा कि जो भारत की सामासिक संस्कृति रही है, इस सामासिक संस्कृति को तोड़ने भारत की जो ज्ञान प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो ज्ञान की परंपराएं थी, उसके अनादर और अपमान भीतर पैदा करने की जो कोशिशें थी, उसके चलते जो जनमानस में एक तरह की उद्विग्नता, उसके भीतर एक तरह का जो आक्रोश पैदा हो रहा था, एक तरह से जो अपने समय और समाज को प्रेरित करने वाले हमारे कवि रचनाकार हुए, वह कौम के भीतर